Okay. Good afternoon, all. We were dealing with the rank correlation, and this was the formula uh, जिसके जिसके साथ हमने कल का एग्जांपल किया, and we had done the similar example with one other method also, with another formula also. Now, what we are doing today, let first of all let's note down both that formulas. ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी नोट डाउन की हुई है, sigma xy minus sigma x sigma y divided by n and under root of sigma x square sigma x whole square divided by n, similar term for the y. ये फॉर्मूला भी आपको पता है, it is already noted that in your class work. और दूसरी जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता है. अब हम क्या करेंगे, चलिए let's proceed with example 2. Now quickly we'll be solving this using both the formulas. Now first of all let me know, ये क्वेश्चन हमने कल सॉल्व कर लिया था कि नहीं किया? Had we solved this, are we done with this question और बाकी था? शायद एग्जाम्पल 1 ही किया था. मेघना, प्रांशुल, एक कोई एक बता दे मुझे. हेलो, by unmuting yourself. No sir, ये बाकी है, ये वाला नहीं किया. Good. Now be ready with your कैल्सी. एक बात खास याद रखनी है, जब भी आप कैल्सी को ऑन कर रहे हैं, अगर आपके नोटिफिकेशन में in the notification of कैल्सी you are getting that particular, you are having that particular regression mode on, तो उसको क्लियर करना कल. क्योंकि अगर ये regression mode on है तो उसका मतलब ये है कि आपके कैल्सी में अभी भी पिछले जो डेटा हमने डाले थे वो अभी भी है. Is it? So we need to clear our calci first of all. Then we'll be using our calci for the next question. ये बात याद रखना है हर किसी को, अगर without making your calci clear each and every time, तो अगर आप वो सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स या तो फिर आर निकाले तो वो गलत होगा, क्योंकि वो दोनों प्रीवियस क्वेश्चन वाला डेटा और ये डेटा दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों मर्ज हो जाएंगे, जो कि हमको नहीं चाहिए. ठीक है, तो चलिए जल्दी से शिफ्ट मोड 3 प्रेस करने से आपका कैल्सी क्लियर हो जाएगा. ऑल क्लियर, इसकी सारी मेमोरी क्लियर हो चुकी है अभी. नाउ this is the data we are having. Here we can clearly observe that what should be the nature. As you can observe, x is increasing and y is also increasing. X is increasing, y is also increasing. So the coefficient of correlation, that means R, will have the positive value. Surely. And one can clearly observe the ratio जो है वो constant नहीं रह रहा है. This is 5/12, this is 9/20, 13/25. Ratio is not constant. That means both this data x and y, both these variables x and y will have the partial positive correlation. That means कि r की जो value है वो 0 और 1 के बीच में रहेगी. That will be our answer. r की जो भी value आएगी, जो भी हमारा आंसर रहेगा वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा. Now, what you guys will do, let's set your calci in the regression mode by pressing mode once. एक बार mode press कीजिए, choose the third option regression, and out of them choose the first option, that is linear. Done? Good. Hopefully we guys are done. Now what will be the next step? We need to enter this data in the calci. Now how we will enter the data? We will enter by its ordered pair. If x is 5, then y is 12. So we are supposed to add the data 5, 12 m plus 5, 12 m plus. आपकी स्क्रीन में दिखाई देगा when you will press m plus. Your calci screen will show you n equals to 1. Is it? Without doing any of thing, without pressing any of the other key, enter the second one, 9, 20. Once again press m1, m plus, sorry. This is the second data we are entering, 13, 25. इसी तरीके से सारा डेटा एंटर कर दीजिए. n equals to 3 आ जाएगा. 17, 33 एंटर करने से n equals to 4, 21, 35 m plus. Now your screen will show you, लास्ट आपकी स्क्रीन होगी n equals to 5. Is it? अब आपको क्या करना है, एक बार ऑल क्लियर कर दीजिए, सी क्लियर कर दीजिए. अभी आपके कैल्सी में पूरा डेटा स्टोर है. ये सारा जो डेटा है x और y वाला वो स्टोर है इसमें. अब if you wish to identify sigma x, sigma y, even x bar, y bar,
its standard deviation, or if we wish to identify its coefficient of correlation, then a Kelsey is able to give us all the data. ये हमारा Kelsey है, वो सारे डेटा हमको दे सकता है. Now first we need to choose a formula. अब यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला के साथ काम करना है वो हमको चूज करना है. चलिए let's decide our formula कि we gonna deal with this formula, sigma x minus x bar into y minus y bar divided by under root of sigma x minus x bar the square into under root of sigma y minus y bar the square. Now, if we wish to deal with this formula, then we need to have this all these terms. यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला के साथ काम करना है तो आपको कितने टर्म्स प्रिपेयर करने हैं वो भी आपको पता होने चाहिए. We need to have x bar, हमारे पास x bar होना चाहिए, हमारे पास y bar होना चाहिए. Once we are having x bar y bar, then we must have x minus x bar वाली कॉलम एक होनी चाहिए, y minus y bar वाली कॉलम होनी चाहिए. इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी निकल रहा है उसका समीशन चाहिए, दैट इज द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में हमको चाहिए कि इसका स्क्वायर वाली एक कॉलम हो, इसका भी स्क्वायर वाली एक कॉलम हो, उसका समीशन चाहिए. सो वी कैन डिसाइड आ ऑर्डर जो हमारे टेबल में है, कितनी टैब हमको चाहिए, कितनी कॉलम हमको चाहिए हमारे टेबल में, दैट वी आर सपोज टू डिसाइड. और उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है. मान लीजिए पहली कॉलम आपकी x है, फिर y है, फिर आपने किया x माइनस एक्स बार, ये कॉलम प्रिपेयर की, उसके बाद आपने प्रिपेयर किया x माइनस एक्स बार द स्क्वायर. वी आर गुड विद दिस. इंस्टेड ऑफ समवन इज नॉट कंफर्टेबल कि अभी मुझे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर नहीं करना है, मुझे चाहिए y माइनस वाई बार, मुझे फोर्थ कॉलम चाहिए y माइनस वाई बार, पहले मैं ये करूंगा फिर मैं ये करूंगा. इट्स ओके, टोटली गुड. तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मायने नहीं रखता है. टेक केयर. देन आफ्टर y माइनस वाई बार द स्क्वायर में कर रहा हूँ, उसके बाद में दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूँ x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार. मुझे 3 एडिशन चाहिए होंगे, 3 के समेशन चाहिए होंगे. 1 एक ये है, समेशन ऑफ दिस, समेशन ऑफ दिस एंड समेशन ऑफ दिस. इन तीनों का एडिशन दैट विल वी गाइस विल रिप्लेस ओवर दैट, और वहां पे रिप्लेस करके एक सिंपल कैलकुलेशन कैलसी से करके हम आर निकाल सकते हैं. बट अब देखिए, अगर ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, देन यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दिस. करना ही पड़ेगा. Instead of dealing with that, if you are gonna deal with this formula, that is sigma xy minus sigma x sigma y divided by n, all divided by under root of sigma x square minus sigma x the whole square divided by n, and similar term for the y. ऐसा ही y वाला एक टर्म. अगर आप इस फॉर्मूला के साथ काम कर रहे हो तो जितने भी टर्म है, देखिए सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये सारे टर्म आपको कैलसी से ही मिलेंगे. ठीक है. तो इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू गाइस टू आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. नाउ लेट मी शो यू. अभी मैंने कैसे किया हुआ है मैं आपको दिखा दूं एक बार, फिर वो आंसर हम कैलसी से भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ये सारा स्टफ, ये सारा डेटा हमने कैलसी में स्टोर करके रखा है. नाउ लेट मी गो थ्रू द सॉल्यूशन. यहाँ पे n की वैल्यू 5 में क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग 5 डेटा सेट. This is first, second, third, fourth, and fifth. We are having 5 data sets, so n की value 5 है. After that, I will go for x mean, x bar, y bar. वो कैसे निकालते हैं? Sigma x divided by n, sigma y divided by n, बहुत ही आसान है. Then we need to prepare this all table. अब ये पूरा टेबल बहुत ही आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. To deal with this, to identify this, it is very very easy. हमको जैसे पता है कि x bar की वैल्यू क्या है, we are knowing x bar is 13. So मैं क्या करूंगा यहाँ पे, x minus 13 करना है. जितने भी है 5 minus 13 निकला minus 8, 9 minus 13 that will be minus 4, 13 minus 13 0, 17 minus 13 4, 21 minus 13 8, is it? And as I said yesterday, this is the deviation taken from the actual mean. If I am dealing with x minus x bar, that means I am taking deviation from the actual mean, और उसका total always 0 ही होता है. Deviation taken from the actual mean is always 0. So इस टोटल की कोई जरूरत नहीं हमको. It is not the part of our formula. Take care. हमको चाहिए वो इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट का समेशन चाहिए. सो ये गलती ना हो. ठीक है. फिर सिमिलरली y बार 25 है. सो ये y बार पूरी कॉलम में से मैंने 25 सब्ट्रैक्ट किया ईच एंड एवरी फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन. तो ये प्रिपेयर हो गया. अब हमको इसका टोटल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए इन दोनों का. सो आई एम टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ दैट.
जैसे जैसे ये प्रिपेयर किया मैंने पूरी कॉलम, इसका टोटल जो भी आ रहा है 160, इसका टोटल जो भी आ रहा है y माइनस वाई बार का स्क्वायर किया जो भी टोटल आ रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो जो भी आ रहा है, दैट इज 236। नाउ इफ माय फॉर्मूला इज दिस, तो ये सारा स्टफ हमारे पास है, ये तीनों हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। न्यूमरेटर था 236, डिनोमिनेटर में वो 130 और 358 था, वो मैंने पिछले टेबल में से ही डाला, और अगर मैं आंसर निकाल रहा हूँ तो 0.986 आ रहा है। अब चलिए वेरीफाई करते हैं ये हमारे कैलसी के साथ, कैसे वेरीफाई करेंगे कोई बताएगा मुझे? ओके, आई नीड वन ऑफ यू विथ मी। मोहम्मद, अनम्यूट योरसेल्फ। टेप, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। यस, चल अब बता इसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि आर की वैल्यू कैलसी से डायरेक्ट मिलेगी, जैसे कल मैंने सिखाया था। क्या प्रेस करना है? तेरे पास कैलसी है कि नहीं हाथ में? हाँ या ना बोल? सर नहीं जाने दे, म्यूट कर दे अपने आप को। मोहम्मद, आर यू देयर? मोहम्मद यासीन, Mohammed Yashin, are you there? Yes, sir. Are you having your calci with you right now? Sir, right now, no. I just I did it manually. Mute yourself. Throw it. Meghna, are you there? Meghna or to Bharti, any of you? Unmute yourself if you're having your calci with you. Any of you? Bharti, are you there? Bharti? Yes, sir. Reply कीजिए बेटा. Yes. कैल्सी है तेरे हाथ में कि नहीं है? Yes, sir. Good. ये डेटा पूरा एंटर कर दिया तूने कैल्सी में? हाँ सर। हमारे साथ चलिए, ठीक है। तो चल बता आप आर की वैल्यू हेलो सर। यस, हु इज दैट? सर राज सर, कल Yes. वाला डेटा भी मेमोरी में पड़ा है, सर मेमोरी क्लियर करना नहीं आ रहा। देख मैं तुझे सिखा दूं, क्या प्रेस करना है तुझे? शिफ्ट मोड दबा, शिफ्ट फिर मोड। ओके, क्या आया तेरी स्क्रीन के ऊपर? SCL मोड और ऑल। हाँ, ऑल के ऊपर जा, थर्ड रीसेट ऑल। रीसेट ऑल। अब तेरे कैल्सी में कोई भी डेटा स्टोर नहीं है, कोई भी मेमोरी नहीं है, ठीक है। अब तुझे क्या करना है, पहले उसको रिग्रेशन में सेट करना है, तो प्रेस कर मोड, यस सर। जिसमें से रिग्रेशन वाला ऑप्शन थर्ड होगा। यस सर। अब हमको चाहिए लीनियर, वो फर्स्ट पे होगा। यस सर। गुड, ठीक है। अब ये पूरा डेटा एंटर कर दे, 5,12 m प्लस 9,20 m प्लस 13,25 m प्लस, ठीक है। यस सर, आ गया 1 से वापस। ठीक है, थैंक यू सर। आई वाज टॉकिंग विद भारती, इज इट? हाँ भारती, Yes. चल कैसे करेंगे बेटा? शिफ्ट, सर ऑल क्लियर करके फिर शिफ्ट। नहीं, ये डेटा पूरा एंटर है अभी, ठीक है ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो अब हमको आर देखना है सीधा। ये देख स्क्रीन के ऊपर है, आर की वैल्यू 0.986, वो कैलसी से वेरीफाई करनी है। शिफ्ट 2 प्रेस कर, शिफ्ट 2, यस सर। शिफ्ट 2 प्रेस कर और 2 बार एरो कीज चूज कर, 2 बार एरो की प्रेस कर, राइट हैंड साइड एरो की। तब तेरे स्क्रीन पे आएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल आर। आ रहा है? यस सर। अब उसमें से आर इज ऑन द थर्ड ऑप्शन। पी प्रेस करके इक्वल टू प्रेस कर, क्या आंसर आया बता हमको, सभी को बता। 0.986076248 इज इट ना? अगर इसको 3 डेसिमल तक हम करेक्ट करें तो क्या आएगा आंसर? 0.986, इज इट ना? दैट्स व्हाट ऑन द स्क्रीन। यही तो स्क्रीन के ऊपर है या नहीं? यस सर। है ना? ठीक है। सो बाय दैट वे यू कैन वेरीफाई योर आंसर। अगर इस फॉर्मूला से कर रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इस फॉर्मूला में आपको सारे जो टर्म्स है वो आपको बनाने। Instead of dealing with this formula, if you are dealing with this, ये जो फॉर्मूला थी हमारी summation xy minus summation x summation y divided by n all divided by under root of sigma x square minus sigma x divided by n, और न्यूमरेटर का स्क्वायर है ये। सिमिलर टर्म फॉर द y। अब चलिए ये पूरे जो टर्म है ना, सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब अगर इस फॉर्मूला से करना है, कल जैसे हमने बात की कि यू आर डीलिंग विद दिस और यू आर डीलिंग विद दिस फॉर्मूला, बोथ दिस आर सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज बोथ दिस आर द सिंपलीफाइड वर्जन ऑफ द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। चलिए अब इससे अगर करना है तो आपको क्या, कितने टर्म्स चाहिए? आपको सिग्मा एक्स वाई चाहिए, आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, देन आफ्टर सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए। ये भी तो सारा स्टोर है हमारे कैल्सी में। देखिए एक बार क्लियर कर दीजिए, नॉट ऑल क्लियर, बस एसी प्रेस कर दीजिए, क्लियर। अभी आपके कैल्सी में पूरा डेटा स्टोर है,
यही डेटा स्टोर है, ठीक है। अब प्रेस कीजिए शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 प्रेस करने से आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स, देन आफ्टर एन, यस और नो। अगर एरो की आप प्रेस करें तो आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर भी है, सिग्मा वाई स्क्वायर भी है, सिग्मा वाई भी है, सिग्मा एक्स वाई भी है ना। Yes, sir. तो यही तो सारे स्टेप है, यही तो सारा स्टफ है जो मुझे चाहिए। देखिए इस फॉर्मूला में जितने भी टर्म है, आई नीड सिग्मा एक्स वाई, तो ये हमारा कैल्शियम को दे सकता है, सिग्मा एक्स वाई डायरेक्ट दे सकता है। आई नीड सिग्मा एक्स, वो भी दे सकता है, सिग्मा वाई वो भी दे सकता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए वो भी दे सकता है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स है तो उसका होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, सिग्मा वाई स्क्वायर वो भी कैल्सी दे रहा है, इज इट ना। सो दैट विल बी योर चॉइस कि आप कौन सी फॉर्मूला कर रहे हो। इज इट, अगर वहां पे लिखा है यूजिंग कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट मेथड, तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला से काम कर सकते हो। यू मे डील विद दिस, यू मे डील विद दिस, is it, that will be your choice. Am I clear with this? Am I clear with this? I need reply from all of you. Are we good with this? समझ में आ रहा है हर किसी को? किसको भी, एक सिंगल बच्चे को भी अगर डाउट है, then I can repeat the whole process. Please let me know. But before that, please let me know. देखिए ये वाला पार्ट आपको 7 मार्क्स देने वाला है, ये पक्की बात है, 7 से 8 मार्क्स। I am gonna drop one of the question in the final examination for the full marks from this part. That is for sure. So almost all of you are clear with this. Good. Let me proceed for the next one. Now, observe the data. Calculate the coefficient of correlation for the following pair of x and y. Now, observe. अगर आप इसको कंपेयर करें अगले डेटा से, तो नंबर्स थोड़े बढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यूज थोड़ी बड़ी है, 17, 19, 21, 26, 20, 28, 26 लाइक दैट। अगर यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, कौन सी फॉर्मूला, दैट वाज जो पिछले हमने लिखी थी सिग्मा एक्स वाई वाली, ये फॉर्मूला अगर मैं कर रहा हूँ तो इसके डिनोमिनेटर में एक स्टेप है, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर, इज इट ना। तो इसका 17 का स्क्वायर निकालूंगा मैं, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, उन सभी का एडिशन, तो ये टर्म थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इज इट। तो ये क्वेश्चन चलिए आप करेंगे अभी आपके वे से। यस प्लीज सर कल जो शीट दी थी सर वही शीट करा रहे हो? और कल ये क्वेश्चन था उस शीट में? ना सर वही नहीं नहीं। था। ये तो मेरा प्रेजेंटेशन है, वो एक्सरसाइज थी, वो लगी थी बेटा, उसमें क्वेश्चन अलग थे, दैट वाज फॉर प्रैक्टिस, इज इट, डोंट वरी। चलिए आपको अभी क्या करना है, मुझे आर की वैल्यू देनी है। किस तरीके से देनी है? यूजिंग कैल्सी। आप कैल्सी से देंगे मुझे। ये पूरा डेटा एंटर कीजिए अपने कैल्सी में, पहले क्लियर करना जरूरी है। कोई भी नया क्वेश्चन लेने से पहले पुराना क्वेश्चन कैल्सी की मेमोरी से क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। मैं चौथी बार बात कर रहा हूँ अभी, यही आई एम रिपीटिंग दिस पर्टिकुलर 4th टाइम। सो पहले ऑल क्लियर कीजिए, शिफ्ट मोड 3 ऑल क्लियर। अब ये पूरा डेटा एंटर करने से पहले आपको अपना कैल्सी रिग्रेशन मोड में डालना है, मोड प्रेस करके 3 देन आफ्टर 1 लीनियर रिग्रेशन। नाउ यू मे एंटर ऑल दिस। अब इसको पूरा डेटा एंटर कर दीजिए, 17,23 एम प्लस लाइक दैट, सभी सारा डेटा एंटर कीजिए और मुझे आर की वैल्यू बताइए। आई एम गिविंग यू 30 seconds क्विकली, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन प्लीज लेट मी नो ओवर द चैट बॉक्स और बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ। 3 लोग ने तो, 4 लोग ने, राज, यशांक, सुशील, प्रतीक ने तो खत्म भी कर दिया। देख, आई नीड रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ऑल मस्ट बी डूइंग दिस, all must be doing this. Take your time, I'm giving you 30 seconds. It's totally fine.
Okay, so let me know how many of you had done Aditya, Janvi, oh, Girish, Mansi, Aditya, Darshan, यश पथिक वाह रे वाह हर कोई कर रहा है अच्छी बात है चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ी अलग तरीके से करते हैं as I said that the coefficient of correlation is free from change of scale and origin अगर उस डेटा का स्केल चेंज कर दे या तो फिर उसका ओरिजिन भी चेंज करे तो भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा अभी आपका आंसर क्या है देखिए अभी as I'm getting answer from your side that is r equals to 0.515 is it this is your answer this is your coefficient of correlation just a minute क्या है કેટલા વાગ્યાનું બધાયનું છે તો આ બતાવી દો પછી Good. So as we are having the answer for this particular that is r equals to 0.515 this is the coefficient of correlation for this data now what I'm doing I'm changing the scale of this particular data इस पूरे डेटा का मैं स्केल ही चेंज कर दूं देखिए कैसे इस स्केल चेंज करने का मतलब क्या है पहले ये समझना है अगर मुझे x का स्केल चेंज करना है दैट मींस I will subtract or I will add a constant number from each and every observation related to x x की जितनी भी वैल्यू है मेरे पास 17 19 21 26 20 28 26 27 उन सारे डेटा में या तो कोई एक नंबर ऐड कर रहा हूं कोई कांस्टेंट नंबर या तो फिर वो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं सिमिलरली वन ऑफ द अदर नंबर आई विल ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द y डेटा रिलेटेड टू y ऐसा करने से उसका ओरिजिन चेंज हो जाएगा अब ऐसा 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 कैसे कर सकता हूं मैं देखिए लेट मी शो यू व्हाट आई एम डूइंग आई एम टेकिंग a and b as assumed mean अब भूल जाइए वो वर्ड दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट पर्टिकुलर वर्ड assumed mean I'm not concerned about that कि उसको मैंने assumed mean क्यों बोला है but what I'm doing from the first row this particular row related to x I'm subtracting 23 and from the second row I'm subtracting 27 ऐसा करने से मेरा जो डेटा है वो कैसा दिखेगा देखिए ऐसा दिखेगा that was this was the actual data related to x and y provided in the question अब मैं x में से 23 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 17 minus 23 it will be minus 6 19 minus 23 it is minus 4 26 minus 23 plus 3 27 minus 23 4 what is important कि आप जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट करें वो सेम होना चाहिए पूरे डेटा के लिए x के लिए x वाली कॉलम के लिए वो सेम होना चाहिए चलिए दैट नंबर इज 23 so this is my new x now I can say this is my new x now similarly I'm subtracting 27 from the y 23 minus 27 minus 4 27 minus 27 0 25 minus 27 minus 2 by that way I'm preparing a new data set this is my new data set I'm labeling that as a dx dy that is just a notation don't worry about that but you are supposed to consider that as a new x new y now if I'm going to deal with this then one can easily understand that will be that digits will be quite small in compare of the earlier data इससे जो कैलकुलेशन होने वाली है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी in compare of this particular data and instead of dealing with this इसके साथ डील करने की बजाय अगर मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ इस डेटा सेट के साथ डील कर रहा हूँ and I am following the same formula पिछली बार हम बात कर रहे थे कि हमको चाहिए x स्क्वायर फिर हमको चाहिए y स्क्वायर फिर हमको चाहिए xy तो वही सारा instead of x now my labeling is dx so I am writing dx the square dy the square and dx dy तो नोटेशन वही है सॉरी फॉर्मूला वही है बस नोटेशन में चेंज कर रहा हूँ and if I'm going to plug in all the datas in that particular formula जो हमारे पास थी वो फॉर्मूला हमारे पास क्या थी let me write it down once again बड़ी फॉर्मूला है जब मैं लिख रहा हूँ उसमें टाइम लग रहा है पर कोई बात नहीं एक बार फिर से लिख दूँ वो फॉर्मूला ये थी सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय n all divided by under root of sigma x square minus sigma x the whole square
डिवाइड बाय द सिमिलर टर्म विद द y, वही टर्म है y वाला। तो देखिए इंस्टेड ऑफ x एंड y इन दिस फॉर्मूला दैट इज dx dy, इंस्टेड ऑफ x एंड y दैट इज dx dy, और कोई फर्क नहीं है, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे सिग्मा x का स्क्वायर समेशन ऑफ x स्क्वायर था, यहाँ पे समेशन ऑफ dx स्क्वायर है, यहाँ पे था होल स्क्वायर ऑफ सिग्मा x, यहाँ पे होल स्क्वायर ऑफ सिग्मा dx है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है, बस डेटा चेंज किया। अगर इसमें मैं पूरा प्लग इन करूँ ना, मुझे जो आंसर मिला तो वही होगा 0.515 जो कि आपको मिला। This is one of the proof, one of indirect proof with one of the example that डेटा का स्केल चेंज करने से उसके coefficient of correlation में कोई फर्क नहीं पड़ता है। So we can say that the coefficient of correlation is independent from change of its scale। अभी हमने स्केल ही चेंज किया, हमने ओरिजिन चेंज नहीं किया अभी तक। I had sorry, that is my mistake. I had changed the origin. Sorry, by adding by adding or subtracting one of the constant to the data, that by that particular process we are changing its origin. Sorry, that was a mistake. That was slip of tongue. So we can say that the coefficient of correlation is free from change of its origin. Origin change करने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब स्केल चेंज अगर मुझे करना है, अगर स्केल भी चेंज करूं, स्केल चेंज करने का मतलब क्या होगा, आई नीड either I am multiplying that data by one of the constant or I am dividing by one of the constant। ऐसा करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। For that I am giving you one more example। I am taking you towards example 4, and the instruction of example 4 is calculate the Karl Pearson's coefficient for the correlation between the age of car and the annual maintenance cost, and this is the data। अब एज ऑफ कार कितनी हो सकती है? अब कार की एज कोई 200-300 साल तो नहीं होगी। एज ऑफ कार इज 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 एंड इट्स एनुअल मेंटेनेंस is 1600, 1500, 1800, 1900, like that, blah 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 blah. Is it? Now this is actual data. This is the actual data. Now if I wish to move it, आप बताइए, पहले मैं डिसाइड करूं उससे पहले आप बताइए कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास आर की दो अलग अलग फॉर्मूला है, is it ना? अब तक जो हमने बात की दो अलग अलग फॉर्मूलास हैं हमारे पास। आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए। Any of you, please unmute yourself or drop a message on the chat box. I'm waiting for your answer. First वाली फॉर्मूला, that means वो x minus x bar y minus y bar वाली वो लगानी चाहिए, या फिर सिग्मा x सिग्मा y डिवाइड बाय वो वाली करनी चाहिए। दोनों फॉर्मूला आपके लैब बुक में आपने लिखी हुई है अपनी राइटिंग में। So choose your formula, any of you। सर कोई भी लगाई, उससे क्या फर्क पड़ा है? हमारे पास कैलसी है ना भाई, सारा सब तो वही कर रहा है, is it ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो। सही में बोलना चाहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर मैं यहाँ पे स्केल चेंज करूं भी, इसका स्केल चेंज करूं, माने कि कोई एक डेटा को कम कर दूं, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने से, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेट मी शो यू। इस डेटा को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखिए। यस, that the age of car in years we denoted as x, उसको मैं x बोल रहा हूँ, दूसरे को मैं y बोल रहा हूँ, annual maintenance को हम बोल रहे हैं y। that is just a labeling, क्योंकि जो कोई भी डेटा हम एक को x बोलेंगे, दूसरे को y बोलेंगे। आप नीचे वाले को x बोल रहे हो, ऊपर वाले को y बोल रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं सारे को 7 से सब डिवाइड कर रहा हूँ, 7 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सॉरी, and in this particular I'm subtracting 18 as well as I'm dividing 100। इस सभी को मैं 18, इस सभी में से मैं 1800 सब्ट्रैक्ट करूँ, फिर उसको 100 से डिवाइड भी करूँ। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो भी इट्स वैलिड। By subtracting 1800 from each and every observation, I am changing its origin। By dividing it with 100, I am changing its scale। और जैसे कि मैंने बोला कि चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, इन दोनों से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूरा इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये डेटा एंटर कीजिए अपने कैलसी में, फिर आर निकाले, या तो फिर ऐसा ए और बी ऐसा चूज करे, dx dy अपनी तरीके से खुद से बनाए और नया एक डेटा लेके आए थे कि दिस इज द डेटा, न्यू डेटा। वो दो अप्लाई करने के बाद दिस विल बी द न्यू डेटा, दिस विल बी अ न्यू x, दिस विल बी अ न्यू y, और उसके ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई करे और आर की वैल्यू निकाले।
वो सही नहीं होगी, पूरी सेम होगी 0.836। अब इसको एक बार जल्दी से वेरीफाई करना है हर किसी को। क्या करेंगे, चलिए जल्दी से अपना कैल्सी क्लियर कीजिए, जल्दी से ऑल क्लियर कीजिए इसे, जल्दी से ऑल क्लियर हो कैल्सी, शिफ्ट मोड 3, रीसेट ऑल, गुड। अब उसको रिग्रेशन में डालिए, मोड उसमें से थर्ड रिग्रेशन वाला, उसमें से फर्स्ट लीनियर। सो योर कैल्सी इज रेडी टू हैव डेटा फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये पूरा डेटा, जैसे देखिए ये टेबल वाला नहीं, ये एक्चुअल डेटा है, उसको ही हमको एंटर करना है, यही डेटा हम एंटर करेंगे। देखिए 2,1600 एंटर कीजिए इसे, 2,1600 m प्लस, देन आफ्टर 4,1500 m प्लस, 6,1800 m प्लस थर्ड डेटा, 7,1900 m plus, 8,1700 m plus, 10,2100 m plus, 12,2000 m plus। ठीक है, सारा डेटा एंटर हो जाने के बाद एक बार क्लियर बटन दबा के शिफ्ट 2 प्रेस करना है, 2 बार राइट एरो चूज करके 3 में से आपको आर की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी 0.8357। यस 0.83574748। अब चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या था। देखिए ये 0.83, अब यहाँ पे है 0.836। क्यों? क्योंकि वो मैंने 3 डेसिमल तक करेक्ट किया था अपना आंसर। दैट आंसर वाज करेक्टेड अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अगर इस वैल्यू को अगर आप 3 डेसिमल तक करेक्ट करें तो देखिए 4 डेसिमल इज 7, अगर 7 को करेक्ट करें तो दैट विल बी 0.836। यस और नो? इज इट गुड? सो चलिए अब बताइए कितने लोगों को ये चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन भी समझ में आ रहा है? एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड के दिस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम बोथ दैट? ड्रॉप योर कमेंट ऑन द चैट बॉक्स, या तो फिर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर और नॉट? क्या बात है, कितना अच्छा क्लास है मेरा। किसी को कोई डाउट ही नहीं रहता है सर, किसी को सब कुछ समझ में ही आ जाता है, या फिर कोई एक लिखना शुरू करे कि यस सर गेटिंग, तो पीछे सभी को यही लिखना है। कितने बंदे एक एलसी लेके बैठे हैं? How many of you are with your कैल्सी राइट नाउ? बस बस बस, हाँ राज सर समझाते ये से बात। कैल्सी अगर नहीं है साथ में तो फिर ये सेशन आपके लिए है ही नहीं, छोड़ के चले जाइए। गुड। 82 MSc चाहिए, 82 ES वर्जन है आपके पास, तो इट्स ओके ना मोहम्मद, इट्स ओके, यू मे डील विद दैट मॉडल ऑल्सो। 82 ES भी चलेगा, 82 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 91 जो है दैट इज नॉट अलाउड, 108 जो है वो भी अलाउड नहीं है एग्जाम में हायर वर्जन जो अलाउड है कैल्सी का वो है 82 MS। ओके 82 तक, 82 MS हो तो 82 ES वो था वैलिड। सर बट आई एम अनेबल टू डू सर। मोहम्मद तू एक काम करना, शाम को जब भी फ्री हो मुझे कॉल करना, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विद दैट कैल्सी। ओके, उसके फंक्शंस के साथ तुझे एक बार फैमिलियर करवा दूंगा, या तो फिर सिंपलेस्ट थिंग गूगल कर ले, एक बार यूट्यूब देख ले, बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, फिर भी ना समझ में आया मुझे बताना, आई विल हेल्प यू। ओके गुड। सो दिस वाज एग्जांपल 4। एग्जांपल 5 भी कुछ है, पर now example 5 and 6, what I will do, I'm going to share the same PPT with all of you and all 3 lab batch A, B and C। ये पूरी जो correlation regression वाली जो PPT है ना, वो सभी के साथ आज ही शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में। What you will do, you will go through all these questions related to correlation, just only correlation, not regression। ठीक है, regression अभी हमको पढ़ना बाकी है, वो मैं करवाऊंगा, उसके बाद देखेंगे। बट you will go through the entire presentation related to correlation। वो 6 या 7 कुछ क्वेश्चन है उसमें, सभी देख लीजिए, मुझे बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ वी आर हैविंग वन ऑफ द शेड्यूल, अभी एक शेड्यूल अभी आया क्योंकि पहले थोड़ा लेट था पर अभी आ रहा है। वी गाइस आर सपोज्ड टू बी एट वन ऑफ द प्लेस। Let me stop the recording first. I was in plan to start the rank correlation